मैं अपनी लाइफ के बहुत सारे साल दे चुका हूँ उस लेवल को. मैंने अपना पैसा दिया है उस लेवल को, मैंने अपना म्यूजिक दिया उस लेवल को. What can a younger artist do when a label gets involved? Hire a lawyer and an accountant. Why lower tax paid neighborhoods are not developed, Yeah. and why higher tax neighborhoods are overly developed Yeah. again and again. You say ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਕਲੀ ਸੋਚ ਤੋਂ, ਪਿਓ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਫੌਜ ਤੋਂ. None of these matter to me. तुम बोल लो जो मर्जी. Even after this comes out, say whatever the you want to say. I don't give up. मतलब वही है ना, 20 गधों से बढ़िया 4 घोड़े रख लो. Bars. हाँ. अगर मेरी वो डैड के साथ कॉन्वर्सेशन ना होती, all these who've been dissing me and saying shit about me would be crying by now. So be thankful that I had that conversation with my dad. I have seen this a lot about your interactions in media कि आप अपने आज़ादी वाले टाइम की ज़्यादा बात नहीं करते. हाँ, dark times. हाँ, मतलब वो क्यों है ऐसा? Because for us looking from the outside, आज़ादी was a very important milestone in Indian hip hop. मतलब मैं उसको लाइकन करूंगा जो पुराने जमाने का कैश मनी टाइप होता था कि एक प्रोड्यूसर है जो सबकी बीटें बना रहा है, एक मेन आर्टिस्ट है, 2 और छोटे आर्टिस्ट हैं, सब मतलब इट्स लाइक अ पहला जो हमने लेबल देखा था. बट देन सडनली वी सी कि ढप करके सब एक ने छोड़ा सब करके क्रम्बल डाउन हो गया. सो व्हाट वाज दैट? एक ने छोड़ा क्रम्बल डाउन नहीं हुआ. मैंने छोड़ा 2 क्रम्बल डाउन हुआ ना. ओके. Look at it. I left. Everybody left. Okay. I was the first artist. I came in. Everybody came in. I left. Everybody left. Okay. दूसरी चीज ये, इतना ही बोलूंगा इसके बारे में और कुछ नहीं बात करूंगा, क्योंकि बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला है मेरे बारे में ऑनलाइन आके. Okay. Publicly. Not once, not twice. Especially when I was in my grief period. I lost my dad, and these people came online, came publicly, kicked me while I was down. I didn't say anything. And I'm still not gonna say anything right now. I'll say my side of the story when it's convenient to me. क्योंकि मैं अपनी लाइफ के बहुत सारे साल दे चुका हूँ उस लेवल को. मैंने अपना पैसा दिया है उस लेवल को, मैंने अपना म्यूजिक दिया उस लेवल को. इफ यू टेक आउट माई कैटेलॉग फ्रॉम देयर, सी वेयर द वैल्यू इज. True. So I'll come out with my side of the story when, even if it's like 10 years from now. But there is a story. Very side of the intense, very intense story. When it will come out, people will sit and watch. Because I'll tell you how I, as a थोड़ा मतलब person who's थोड़ा सा tuned in but who doesn't know the inside of it, it was like कि सब कुछ इतना बढ़िया चल रहा था. You guys were really like ruling, जिसे कहते हैं. And then what happened? Like, I think one question that everybody has is, हुआ क्या? I'll come out with my side of the things. Again, when it's convenient for me, because मैं उनके convenient पे 5 साल चला हूँ. चलो 5 नहीं बोलता, पहले के 2 सही थे, बाकी के 4 तो मैं उनके convenience पे ही चला हूँ. जैसा लेबल को चल रहा है मैं उसके हिसाब से चल रहा हूँ. Now it's time when I feel like talking, I'll talk. जितने मर्जी डिस निकाल ले कोई भी, मैं करूंगा ही नहीं बात. वही चीज जो हीलिंग हुई है इतने सालों बाद कि अब कोई वो मेरे को मेरी प्रायोरिटी ये लोग नहीं है. मेरी प्रायोरिटी एनीमोर. लाइक दे डोंट एग्जिस्ट इन माय रियलिटी. आई एम ट्राइंग टू मूव अवे फ्रॉम देम. एंड अगेन व्हेन आई विल कम आउट विद माय स्टोरी, डजंट मैटर व्हाट टाइम इट इज. It won't be a reaction to anything that has been said. वो अपना makes sense. वो it's gonna be, it's my due diligence for my fans. मेरे फैंस को भी तो पता होना चाहिए ना, वो भी तो देख रहे हैं. So अभी मैं यही बोलना चाहूंगा, कैमरे में देख के बोलूंगा to my fans that
आई एम सॉरी आई डिड नॉट कम आउट विद एनीथिंग इतना सब होने के बाद भी. सो डोंट थिंक आई एम स्केयर्ड और एनीथिंग. True. I am just taking my time, you know, and sort out my life first. Yeah. Which is the most important thing. I think. Yes. ये सब तो मतलब चलता रहेगा. हाँ, ये तो आगे भी लोग आएंगे हेट करने. अभी तो ऊपर जा रहा हूँ तो ऑफ कोर्स हेट तो मिलेगा ही ना. बट अब कैसी लाइफ है यार? इंडिपेंडेंट हो गए, अपना सामान अपने हाथ में कर रहे हो. You are not signed to any label at the moment, right? How is life now? Giving me reality checks, definitely. And about the industry especially, who's with me, who's not, how it works internally. It took me a year and a half. But every day working में कुछ change आया है? Very much. I have my own solid team now. Okay. Like मेरे साथ मतलब वही है ना, 20 गधों से बढ़िया 4 घोड़े रख लो. Bars. हाँ. तो अभी 4 घोड़ों के साथ कर रहा हूँ काम. मेरे साथ बढ़िया हैं, लंबे रेस वाले हैं ये. सब अपना अपना जिंदगी में हार के आए हैं, कुछ ना कुछ सीख के आए हैं. सब इकट्ठे हुए हैं साथ में अभी. But how does it work financially when you start taking things in your own hand? मतलब कुछ ऐसा होता है कि यार अब तो कितना पैसा आ रहा है वो भी हमें देखना है, कितना किस चीज में लग रहा है वो भी हमें देखना है. पहले भी ऐसा ही होता था ब्रो. ओके. लेबल पैसा लगा भी रहा है तो अपनी जेब से चंदा थोड़ी दे रहा है मेरे को. It's a loan. सब रिकूप करेगा डबल से ज्यादा. ये मैं चाहता हूँ प्रभ भाई, आप as clear as possible बता दो for a lot of young artists कि लेबल का जो पैसा होता है वो होता क्या है एक्चुअली. Like I see it as a loan जो चुकाना पड़ेगा. It's worse than a loan. ओके. तो देखो अभी आपने घर का लोन लिया बैंक से, ठीक है. आप उनके साथ टर्म्स एंड कंडीशन में आते हो, चलो 9% से 12% के बीच में, दैट्स द इंटरेस्ट रेट, राइट. यू पे दैट लोन ऑफ इन व्हाटएवर 20 years 10 years जो भी तुम्हारी टर्म्स है. ठीक है. फ्री घर तुम्हारे पास तुम्हारा आ गया. गाने कभी नहीं आए. मास्टर्स उन्हीं के पास रहेंगे. हाँ. वो बनता जाएगा चाहे तुम्हारी डील 50-50 या 100 पे या 360 या डजंट मैटर, बट you will make them way more money. It's not a good deal for art, at least for me. I can't say it for people who are signed to them. Maybe it worked for them. No, it's not just about like a particular label. What happens with young artists is यार अपने तरफ से कर रहे हैं सारा काम, वीडियो के पैसे भी खुद बना रहे हैं. As you said 5,000 में वीडियो बन रही है, तो as soon as the industry gets involved वो दिमाग फिर जाता है थोड़ा सा कि चलो एटलीस्ट काम मेरा आगे लोगों तक तो आएगा. तो उस समय पे what can a younger artist do when a label gets involved? Hire a lawyer and an accountant. Like जितना जल्दी हो सकता है. And this ये तुम्हारी लाइफ में कब आया, lawyer and accountant? बहुत late. After I was independent. Okay. हाँ. When I hired my own accountant, when I get everything checked, like मेरा दिमाग घूम गया था. Like these things हम सुनते हैं, इसमें NWA के साथ हुआ था, कैश मनी में हुआ था, but this is an actual reality that happens when the industry gets involved. यार पता क्या होता है, they see us, especially budding artist, जो छोटे, जो ऐसे बज है जिनका थोड़ा एक. हाँ, और जो ब्रोकन रियलिटी से आते हैं. ओके. जिनको समझ नहीं है हाउ द सिस्टम वर्क्स, लाइक मी. ओके. I had no idea how the system works, how money works. Who's an outsider to the system पूरा. हाँ. मतलब स्कूल में भी नहीं सिखाया जाता अपने को ये. टैक्स भरना नहीं सिखाते ये. हाँ, पहले साल तो मैं ब्रोक हो गया था ब्रो. 3 अंकल साहब आगे, हमारा तो जो भी है अंकल आगे मांग रहा है, भाई टैक्स तो भर. मैं बोला कौन सा टैक्स, कहाँ से टैक्स. इतनी मुश्किल से तो खाए हैं पैसे. काम घिस के तो बनाया है भाई, तू आगे पैसे मांग रहा है और किस चीज के लिए मांग रहे है तो बता. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स जिनको पता है, जो बहुत ज्यादा जिनको पता है कि हाउ इट वर्क्स, they will not come up and tell you how it works. Get me? It's not बताओ कौन से आर्टिस्ट को आके लेबल बोलता है कि देख भाई ऐसे घूमता है पैसा, this is how we work.
nobody explains it to the artist कि तेरा तू अगर मर्सिडीज में बैठना चाहता है, आज हम बिठा रहे हैं तेरे को, बट ये तेरी जेब से जा रहा है, एंड दिस नोबडी इसका रेंटल तेरी जेब से जा रहा है, तेरे रिक्रूटमेंट में जाएगा, और वो तेरे को कैसे पता लगेगा जब तू एक अकाउंटेंट हायर करेगा, जो कि किसी यंग बंदे के पास होता ही नहीं, वो ध्यान भी नहीं देते। तो इसीलिए आर्टिस्ट को अपना सो accountant, लेबल अपना कम्स विद यू कम्स टू यू विद अ चेक बेसिकली कि ये लो पैसा। मेरे को तो वो भी नहीं मिला था मैं तो गाने देता गया, मेरे को तो कुछ, वही है मेरी स्टोरी जब बाहर आएगी ब्रो, बहुत सारी लेयर्स इन्वॉल्व हैं। इंटरेस्टिंग। सो दिस आई थिंक अगर तुम इस पूरी कॉन्वर्जेशन में से कुछ लो ना लो, इफ यू आर अ यंग आर्टिस्ट, प्लीज, भाई ने बोला है जो, एक लॉयर एक अकाउंटेंट कर लो। एंड आई थिंक थोड़ा स्लो डाउन, बिकॉज एज यंग आर्टिस्ट हमें लगता है कि बस यार इंडस्ट्री आई है, जल्दी से कर लो कुछ। भाई लुक एट इट, सो देयर आर नो रूल्स कि तब कब तुम, व्हेन विल यू मेक इट। यू, दिलजीत दोसांझ took 22 years to make it. करण औजला सेम अमाउंट ऑफ टिकट सेल कर रहा है, बट उसको कम टाइम लगा है। सो देयर आर नो रूल्स। एग्जैक्टली। तुम्हारा जब टाइम आना होएगा तो आ जाएगा, चाहे वो 20 साल बाद आ रहा है, चाहे वो 5 साल में आ रहा है, यू नो, जब लिखा हुआ है तो आएगा। सो बी पेशेंट विद इट, और नहीं भी आना हुआ तो क्या फर्क पड़ रहा है, तुम अपना काम करो और आगे बढ़ो। अगेन इस जन्म की बात है ही इस लाइफ टाइम की बात है ही। अब वो आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट डिपेंड करता है, व्हाई दे आर, Yeah. व्हाट्स देयर पर्पस विद इट। लाइक क्या कई आर्टिस्ट करते हैं काम ऐसे कि जिनको अभी ही पॉप होना है, इस जनरेशन, इसी ट्रेंड में गाना बन रहा है, एंड मोस्ट ऑफ इट लाइक 100 गाने ट्रेंड वाले बनते हैं, उसमें से कितने ऊपर आते हैं। एक गाने से जिससे ट्रेंड आया है सिर्फ वही रहता है टॉप पे। उसके बाद पीछे जो 100 गाने हैं, मुश्किल से एक और आ जाएगा, 2 आ जाएंगे, चलो 10 आ जाएंगे, 90 तो गए, overshadowed. How was working on Tabia like? Which he just corrected me backstage कि मैं तबिया बोल रहा था, ताबिया होता है, Yeah. which is a chess piece, right? नहीं, it's a time in chess. अच्छा, time in chess. Yeah. Okay. It's a time in chess where you have multiple options open, and that move decides. Tabia decides where you're gonna go. Okay. So for me, Tabia was that where I wanna go. अब चमक रहा है। Got it. So उस समय पे क्या माइंड स्टेट था? बहुत सारे अलग अलग थे, मतलब it was 2 years of R&D on the album. Music wise, sound wise. Sound नहीं, आइडिया, Okay. थॉट्स, क्या लिखना चाहता हूँ, Got it. कई कई स्क्रैचेस बना रखे थे। लाइक ताबिया मैंने 5 बारी सो ऐसे बनाया, लिखा, फिर उसे फोल्ड किया, ठीक है, फिर उसे लॉक कर दिया, Okay. फिर वो लॉक्ड एल्बम देखी मैंने, फिर उसमें थोड़े से और चेंजेस करे, फिर उसको एक और बारी लॉक किया, फिर थोड़े से और चेंज, सो 5 लेयर्स में लॉक्ड है वो। ताबिया वाज दैट इज दैट प्रोजेक्ट जो थोड़ा इट विल एज वेल विद टाइम। तुम अपने लाइफ में कहाँ हो वो डिपेंड करता है सुनते हुए, एंड इट विल ओपन अप मोर लेयर्स फॉर यू उस पर्सपेक्टिव से। Because वो बनने में भी वो लेयर्स में बना है। या बहुत ऑथेंटिसिटी से बना है। Yeah. It wasn't money driven, it wasn't numbers driven. Zero, like compromise तो 1% नहीं किया मैंने उस एल्बम पे, थॉट भी Is नहीं there आया मेरे any of your songs or project जिसमें you think कि compromise करा है मैंने? को। कॉम्प्रोमाइज नहीं करा है, बट ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से जरूर बनाया है, which was माया, अमर, like एक किंग ईपी फुल was ऑडियंस, मैं दूसरों के लिए बना रहा था। Okay. हाँ, that was that. बट उसके अलावा आई डोंट थिंक सो आई कॉम्प्रोमाइज एनीवेयर। But after you've spent so much effort and I'm sure even money on Tabia, it didn't perform as well. When you think about it in the industry standard, number wise, ये wise, तब कैसा लगता है? So tell me who failed? Did I fail? हाँ, because तुम्हारा काम था Or did अच्छी the label एल्बम fail?
Was it my job to market it? So you're saying it's a purely like a distribution का issue. I don't know who. मेरा काम ही नहीं है ना वो देखना, ओवरलुक करना. अगर मैं तुमको दे रहा हूँ राइट्स, मैं तुमको पैसा बना के दे रही है एल्बम, तुम्हारी जॉब है ना उसको कैसे प्रेजेंट करना है. मैंने तो अपनी तरफ से 100-200% दिया है उस पे, कवर आर्ट से लेके एवरीथिंग. व्हाट हैपेंड व्हेन इट कम्स आउट, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ लेबल ने नहीं दिया है, क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू. आई एम नॉट पेटी लाइक देम कि सारे ही छीन लो, सभी छीन लो इससे, दूसरा बना दो. They were there till I was putting in 100, they were putting in their 50, maybe 20, because there were other 5 artists. So I was getting 20% from resources. I'm putting in my 200%. As soon as it comes out, nothing. Where it is like, it's my job is done once it's out. Now I put out DSP independently. Yeah. If this fails, it's on me. Thappad was the first track. It performed well for me as an independent. Like I was happy with it. Yeah. King Returns didn't perform really well. I learned a lot from But it. I think that was a more personal thing for Yes. you. वो लगती भी Yes. मतलब वो हाँ, अपने लिए बनाई है yeah, एल्बम. हाँ. exactly. Yeah. वो मेरे को बहुत कुछ टर्मोइल Purge निकालने होना के है, लिए, हाँ. हाँ, ग्रीफ भी था उसमें Yeah, बहुत सारा. 100%. Now DSP is more, there is a long campaign for it, which I'm overlooking everything. कि क्या करना है क्या नहीं करना है. And the title is a part of that. Yes, yes. Yeah. Now if that fails, that's on me. But again, I am not giving anybody any rights, no. If it fails, it's me. If it pops, Would it's me. ताबिया be one project जो you would urge more people to listen to? कि मतलब कुछ सुनना है ना No. सुनो, ताबिया सुनो. No, I say Tabia is that one is that one project. It will find you. If it was marketed well, with the same thought I made it with, Okay. would have worked, but it didn't. And how long did it take you to get out of that zone? Because ताबिया के बाद I think you took some time to drop more music. तो वो उस लो में से जब इतना टाइम लगाया है एल्बम पे, तो उससे निकलने में क्या प्रोसेस रहता है? होती तो है दिक्कत. Like it's almost like getting into a character, and I was juggling in 5 characters while making Tabia. So it took a toll on my mental for sure. And then the kind of people I was around, not understanding why I'm getting angry. My family did, my partner did, but other than that, like, nobody sat me down and be like, "What's up, bro? What are you going through? Tell me." You know, this is where when you manage an artist, it's like a relationship. Yeah, that's true. It's like a relationship. Artists मीटिंग are very, शेड्यूल करना सिर्फ काम नहीं होता. हाँ, हाँ. ट्रू. briefings are, I'm not doing 9 to 5. No, I don't take any time off. We don't have weekends. We don't have Yeah. celebrations. Like even An artist is an only profession where you put in your emotional labor as Yes. well. तुम टाइम लगा रहे हो, मेहनत लगा रहे हो, Yeah. but there is तुम अपना इमोशनल हाँ. आउटपुट दे रहे हो. फिर वो इमोशनल, मेरे इतने इमोशनल प्रोजेक्ट्स को जब कोई ऐसे प्रोडक्ट की तरह देखता है, मेरा बहुत मन करता है उसको सुनाने का. मेरा बहुत मन करता था कि तेरे से छीन लूं मैं ये सब वापस. बट यू आर सेइंग अब नहीं होता वो इतना, बिकॉज अभी भी तो लाइक डीएसपी इज अ प्रोडक्ट आल्सो ना फॉर द इंडस्ट्री. हाँ, बट इट्स माय, इट्स योर it's my यू कंट्रोल कि वो प्रोडक्ट Yes. कैसे आएगा. it's in my hands now. So I'm more secured with, like,
I know what kind of feelings went through it. I know I cried alone in the studio. Yeah. I know how heavy it was for me to, मतलब मैंने मेरी खुद की शैडोज के सामने खड़ा होना, अपने डार्कनेस Yeah. के साथ जाना अकेले, कमरे में. इट्स वेरी पर्सनल. Yeah. कोई नहीं समझ रहा है तुम अकेले हो. True. और फिर वो किसी इविल बंदे के हाथ में जाए, वो तो मैं नहीं होने दूंगा. Are you a very like religious person? Because आपके गानों में बहुत religious imagery होती है, undertones होते हैं. You talk about कि धर्म ये बोलता है, ये नहीं बोलता. So what is your idea of religion and like a higher power type thing? I don't know if I'm religious, but I believe in God. I believe in Vaheguru, I believe in Allah, I believe in भगवान. मैं सारे हर धर्म के हायर पावर में विश्वास रखता हूँ. मेरे को लगता है सब एक ही है. ट्रूली मानता हूँ मैं. और ये हमेशा से रहा है या कुछ? नहीं, आई वॉज बिकॉज ऑफ माई अपब्रिंगिंग. मेरे डैड बहुत रिलीजियस, मॉम बहुत रिलीजियस. दे ट्राई टू पुट मी इनटू सिखिज्म एज वेल फुली. देन आई वेंट अगेंस्ट इट बिकॉज मैं ऐसे सोचता था कि मेरे पापा तो इतना पाठ करते हैं, फिर भी हमें why are we going through these struggles? Like God is not with us. That like young उसमें questioning everything. अगर भगवान है तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? That kind of thing. And luckily I'm blessed with like great parents who never pressured me to follow anything. Not neither my sister. कि तुम्हें ये करना, वो अपनी तरफ से उन्होंने शुरू से मेरे को बताया है कि you will understand at one point in life when you get tired of shit. This will be your last resort. Yeah. You will be, तेरा आखिरी सहारा भगवान ही रहेगा. वो हायर पावर ही रहेगी आखिरी. तो मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ उसमें. और रिलीजन में भी मैं इसी उस कैपेसिटी में बिलीव करता हूँ कि जब तक वो मेरे लिए काम कर रहा है, लाइक इन ऐसे मेरे लिए काम करना मतलब कि इफ मेरा रिश्ता विद गॉड, भगवान, जब तक वो मेरे तक है, बढ़िया है. मैं किसी सामने वाले को नहीं बताता हूँ, ना मैं किसी सामने वाले को गलत बोलता हूँ कि तू ये क्यों कर रहा है, कि ये वाला बढ़िया, ये वाला बेकार है. वो नहीं, ये मेरा रिश्ता है रिलीजन के साथ, जो मेरा खुद का, मेरा पर्सनल है. और सबका ही ऐसा होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है. योर रिलेशनशिप विद गॉड इज समथिंग वेरी पर्सनल, बिकॉज इट्स वन ऑन वन डायलॉग विद देम. नो, इस प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो. How important is it for you to be political as a rapper? Not really. It's not my. हाँ, क्यों? मतलब do you think that you need to speak about things that are happening around you? I don't think because so. you do a fair bit of it. There are projects where you haven't. तो हाँ, ये मैं सारे आर्टिस्ट को बोलना चाहता हूँ, तुम्हारा मन कर रहा है तो बोलो, और सोसाइटी के प्रेशर में आके मत बोलना कि इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. आर्टिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती. पहले सोसाइटी की सुनो, रिश्तेदारों की सुनो. सब ऊपर आते आते बोल रहा हूँ, जब लाइक व्हेन सब लोग आर्टिस्ट को ऐसे देते, अबे क्या करेगा आर्टिस्ट बन के, भाई कुछ नहीं रखा इसमें, सब कुछ. ये सब सुनो, फिर जब बन जाओ तो वही लोग बोल रहे हैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बोलना. हमारी नहीं है भाई, जिसका काम है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. पॉलिटिशियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सही करना, आर्टिस्ट की नहीं है. हमारी, इफ यू फील लाइक, अगेन टू ऑल द आर्टिस्ट, टॉक पॉलिटिकल शिट इफ यू फील लाइक इट. डोंट फील प्रेशर्ड कि हमारी ऑब्लिगेशन है ये करना. इसको इस वे में मत लेना कि तुम गलत बोल सकते हो किसी चीज के बारे में. आर्टिस्ट की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि लोग सुन रहे हैं तुमको, तुम इन्फ्लुएंस होने वाले हो, इतना करो कि बस सही बात, बी ट्रूथफुल विद आर्ट. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे को लगता है बनती है. ये नहीं बनती कि पॉलिटिकल होना चाहिए. हाँ, पहले मैं था,
हाँ, क्योंकि मेरे को लगता था एग्जैक्टली मेरे एट को वो एनी चीजें टाइम feel डिड यू होती हैव थी। अ फीलिंग कि यार, एंड स्पेशली कमिंग फ्रॉम हिप हॉप कुछ जिसके चेंज हुआ मैं roots ऐसे हाँ मतलब मैं ऐसे ऐसे देखता हूँ मेरे इतना बोलने से कुछ चेंज हुआ मेरे को तो नहीं दिखा जिन चीजों के बारे में मैंने अपोज किया कुछ हुआ आज भी हो रहे हैं ना रेप आज भी पॉलिटिशियन पैसा चोरी करके जा रहे हैं ना सब कुछ वैसा ही चल रहा है अभी से नहीं बहुत पहले से सो मेरे बोलने से नहीं हो रहा है चेंज वाई वुड आई वेस्ट माई एनर्जी ऑन एनीबॉडी मैं तो हूं सेल्फिश आई रादर राइट अबाउट समथिंग विच प्रोवोक थॉट इंडिविजुअली कि तू कुछ सुन रहा है मेरा और तेरे में तेरा दिमाग ऐसा चल रहा है कि ओ वाओ लाइक यू आर देन यू आर मेकिंग डिसीजन ऑन अ इंडिविजुअल लेवल दैट इज चेंज ऑल्सो बीइंग पॉलिटिकल इज नॉट जस्ट कि तुम पार्टी के बारे में बात करो, इसके बारे में बात करो, अपनी पर्सनल लाइफ से ज्यादा पॉलिटिकल हो ही नहीं सकता कुछ। तुम्हारे घर के अंदर चलती है पॉलिटिक्स एग्जैक्टली मेंटल हेल्थ, लाइक फॉर टू मेन टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ इज पॉलिटिक्स। या इट इज तो मतलब आई थिंक हम स्पेशली इन हिप हॉप हम उसको एक छोटे से दायरे में बंद करके रख देते हैं कि सिर्फ सरकार के खिलाफ बोलना ही पॉलिटिक्स है। हाँ Like I would say that a song like Kal or a song like Click Clack is deeply political. Yeah, it's where again the story why it happened. वो Why क्यों है ऐसा? हाँ why lower tax paid neighborhoods are not developed Yeah. and why higher tax neighborhoods are overly developed Yeah. again and again. और फिर वही उस साइकिल को reinforce Is करता there है। and I made my peace with it. ऐसे ही चलता है bro. और आर्टिस्ट का काम है पिक्चर सामने रखना, उस पे इन्फ्लुएंसेस डालना थिंकर्स का काम है और लोगों का काम है। Politics starts from your home. कि कैसे like my father passed away. Politics of my house changed. The dynamic of my house changed Yeah. drastically. Yeah. True. It's a different politics now. Yeah. पहले क्या होता था मेरे डैड मेरे मॉम मेरे और मेरी मॉम के बीच में बैलेंस कर रहे हैं चीज़ों को बिकॉज ही वॉज सीइंग समथिंग विच आई वॉज बिजी इन टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली फाइनेंशियली एंड ही वॉज देयर मोर लाइक इमोशनल ही वॉज बैलेंसिंग आउट इमोशनली Yeah. now he's gone now I have to balance out everything emotionally and financially you know and it's not like कि मेरे घर वालों ने मतलब मॉम और सिस्टर ने कुछ नहीं दिया मेरे पार्टनर ने कुछ नहीं उनके भी इक्वली चेंज उनका भी आया है Exactly. just like one person out of the family and the whole dynamic whole politics you know changes तो वो मेरे को मेरा मेंटोर समझा रहा था कि you are a politician you don't know it Exactly. वो हो ही नहीं, कोई भी इंसान, वाई ओनली आर्टिस्ट फॉर दैट मैटर, वो एपॉलिटिकल हो ही नहीं सकता। क्या अब कुछ लोग उसको, या तो तुम साधना ले लो जाके बट उसमें भी छोड़ ये है छाड़ ना के चले जाओ कि हाँ कि तुम ऐसा क्या हुआ तुम्हारी लाइफ में, व्हाट आर द लाइक बहुत समय पे देयर आर फेजेस इन द ह्यूमन हिस्ट्री जब रिलीजियस बिलीफ बहुत बढ़ जाता है, गॉडमैन बहुत आ जाते हैं, Yeah. या वॉर्स के बाद ऐसा बहुत होता है। Yeah. तो जस्ट बाय मतलब बस ये देखना कि अच्छा कोई इंसान साधु बन गया, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है कि ऐसा क्या हो रहा है या दुनिया में। 100% वो तो Like as I said, like a person moving from Delhi to Goa is a deeply like मतलब I would say it's a environmental story. yes not just like physical like mental environment Exactly. more than Like what you physical. said कि मेरे को दिल्ली में किसी ने पूछा था कि तुम्हारी कास्ट क्या है, ये क्या है, वो क्या है, और गोवा में किसी ने नहीं पूछा। हाँ. अब ये बहुत बड़ी चीज है। या जजिंग नो ये बंदा पूछ रहा तुम जॉब करते हो या नहीं, अबे तेरे को क्या लेना देना, मैं तेरे को पूरा पैसा दे रहा हूँ, मैं तेरे से रेंट पे घर नहीं मांग रहा हूँ ब्रो मैं, गेट मी लाइक ऑल दीज क्वेश्चंस शुड नॉट बी देयर and again like in Goa that wasn't the case so for me that was more relaxed कि one less thing to worry about kind of way because I have
a lot of things to figure out. और अब तो भाई पैसा वैसा भी खुद ही कमाना है, सारा सब कुछ डिस्ट्रीब्यूशन इवन हाँ, और ऊपर से संभालना भी खुद है. हाँ. I'm a head of my और family. अब तो भाई एक्टिंग भी शुरू कर दी. Yes, sir. तो वो सब भी तो नेविगेट करना है. Yes. When did you decide that you want to star in a biopic on your life? बायोपिक थोड़ी थी है. क्या नहीं, biopic नहीं थी. The Fictionalized similarities are uncanny. देख लो लिखा हुआ है सब कुछ. नहीं ये तो मैनिफेस्ट तो कर रहा था मैं एक्टिंग बहुत टाइम से. आई वांटेड टू डू डिफरेंट कैरेक्टर्स. ये तो है शुरू से ही. आई वांटेड टू डू कैरेक्टर्स व्हिच आर अवे फ्रॉम माय लाइफ, बट इट डिडंट हैपन. लाइक मतलब मेरे को मेरा ही कैरेक्टर मिला. I'm still putting it out there for all the directors, production houses. भाई अपने प्रोफाइल शॉट्स वगैरह. Yes, देख लो. This is my right profile. Yeah. करो भाई, कास्ट करो. बहुत अच्छी एक्टिंग की थी यार. मजा आया. नहीं कहाँ, इतना भी नहीं, अच्छी तो नहीं थी. मतलब डेब्यू के लिए ठीक था. हाँ, I was disappointed to be honest. Then experienced actors around me, they were like, bro तू हमारा डेब्यू देखेगा तो तू रो देगा. समझ रहे लाइक कि फॉर अ डेब्यू इट वाज गुड. तो फिर मेरे को थोड़ा सा ऐसा हुआ. देन आई वेंट बैक लाइक थॉट अबाउट द वेरी फर्स्ट टाइम आई रिकॉर्डेड. I like हाँ it's better than that. It's better than sure, that. It's better than that. उसको डिलीट करने की नौबत आई थी, इसको एटलीस्ट डिलीट करने की नौबत और मेरे नहीं हाथ में भी नहीं है डिलीट करना. सो जियो सिनेमा if you are listening. Nice. So we're going to close in a bit. Okay. But before that I want to read out some lyrics to you. Okay. And आप मुझे बताना कि what are your thoughts about it. उस समय पे माइंड स्पेस क्या था and what do you feel about them now. ठीक है. So पहला है अमर में आपने बोला था which has been my like doubt जिसे कहते हैं as a hip hop head for the longest time. You said कहते हैं सरदारा विचो हुंदा नहीं हो भेदभाव. I knew that was coming. ताइयो बापे जट्टा तो चपेट खा. और उसके बाद एक बीप है. हाँ. वो मेरे को it has irked me ever since I've heard that song for the first time. वो क्या है? Why is that? And मतलब why did you need to censor it or? बता दिया तो फिर सारा पॉइंट ही खत्म हो जाएगा. ओके. बट वही है कि अगेन आई वाज मेकिंग इट अमर माया किंग हीरा कला खत. These 6 were made for the audience. So intrigue करना मेरे लिए बहुत जरूरी था. You're still intrigued. Exactly. Yeah. What was that? So 2 सवाल हो गए. DSP का फुल फॉर्म और ये बीप क्या किया था. किसी को नहीं पता वो तो. किसी को नहीं पता. कोई प्रोड्यूसर इंजीनियर जिसके पास स्टेम्स पड़े हो. नहीं मैंने मिक्स मास्टर सब कुछ मैंने किया था. ये राज भी मेरे साथ चला जाएगा. नहीं जाएगा तो नहीं. ये सब वही तो मैं बोल रहा हूँ. मेरे जाने से पहले मैं बहुत कुछ दे के जाऊंगा. ये सारे राज खोल के जाऊंगा ताकि मेरे को प्रॉब्लम ना कि अब तुम देख लो. स्मार्ट हो गया लड़का. अब तुम देख लो. नाइस. The second verse I want to talk about is Elan. That I think is one of my favorite verses of yours. वो मैंने पहली बार लाइव सुना था, फट गया था मैं. फिर उसके बाद जब वीडियो आई, ऑडियो आया. What was it working on that song, Hammer? मतलब people who don't know it, it was only half the verse I recorded. हाँ. It was a very long verse. Like और भी बहुत कुछ लिखा था मैंने. बहुत कुछ ऐसा भड़ास. I think that was the last thing I said about like active politics. Yes. You say मैनू चाहिदी है आज़ादी नकली सोच तो प्यो दी पहुंच तो कश्मीर दी फौज तो. Like first time the word Kashmir was said in a political context, not कि अच्छा वादियाँ और ये सब जो actually में हो रहा है. So वो कैसा था and how was working with Hammer like? Crazy bro. टूर पे भी गए थे और टूर पे भी गए थे ना तुम उसके बाद? हाँ हम लोग उसके बाद नहीं पहले actually I went to Kashmir. I saw it without any bias. I saw it
एज अ बॉय फ्रॉम तिलक नगर, जब मैं पहली बार कश्मीर गया, मैं वापस आया, वाज लाइक जो तुम गैंगस्टर शिट कर रहे हो तुम्हें नहीं पता है। जेड़े बॉर्डर नहीं टप्पे, हाँ। करंट जंग दा ऐलान। तुम यहाँ पे जो तुम बैठ के ऐसे गैंगस्टर्स बन रहे हो, तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि तुम्हारी जान पे कभी भी बन के आ सकती है। द टेंशन, इमेजिन अ किड born there in 2024, right, growing up and be like, what is this? I did not sign up for this. You know, just like how it was my And it is so state of sad. mind. It's a completely different world जिसके बारे में मतलब मैं पता बस ही यही, नहीं हाँ, मैं पहले बहुत बात करता था इस टॉपिक के बारे में, कश्मीर के बारे में. देन आई डोंट डू इट एनीमोर बिकॉज it's very personal, not to just one community but multiple communities. True. और उनकी फैमिली के, जैसे 84 मेरे लिए पर्सनल है, हाँ, राइट, लाइक माई ग्रैंडफादर पास्ड अवे इन द राइट्स. तो मेरे लिए, आई नो द डेंसिटी, आई नो द इंटेंसिटी ऑफ द स्टोरी देयर, एंड आई नो द इनसाइड ऑफ द स्टोरी देयर. विद कश्मीर मैं चाह के भी वो कॉम्प्लेक्सिटी नहीं अंदर वाले को ही मैं- पता चलती है. हाँ, हाँ, मैं नहीं समझ पाऊंगा, इसलिए मैं चुप हो गया उसको लेके कि दिस इज अ वेरी, किसी का लाइक यू, व्हेन योर फैमिली माइग्रेटेड फ्रॉम देयर, you must have lost many of your family members. My father, I still can't say the word Kashmir in front of him, and उसके बाद हम कोई नॉर्मल बात नहीं कर सकते. Like we have to have 5 मिनट के लिए he goes into a different zone. I know what you mean. Like a lot of times he tells me कि लोग जब तेरे से पूछते हैं कि तेरा घर कहाँ है, तो तू बोलता है XYZ दिल्ली. मैं बोल ही नहीं सकता बिकॉज मेरे लिए घर का वो मीनिंग ही बहुत अलग है. सो देर आर सो मेनी डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इट. एंड नहीं, मैंने just to clarify this line, Kashmir the Fauj, it was my perspective going to Kashmir. Purely just my perspective. True. That I landed, I had my hand out on the window of the car, and on every 5 meter there was a army guy with a gun. Like guns I never saw in my life, जो possibly हमने वीडियो गेम्स में देखी है, like चमकती हुई एकदम, you know, ग्रोजा वगैरह लगी हुई है उसने, like damn. True. And the upside was the place was very beautiful. Exactly. And then the interaction with army there, like every time we interacted, like there was a different emotion. So मेरी तरफ से वही था कि अगर इस जगह को, like I'm looking at it from a nature lover perspective, as a resource for the country also, that Kashmir is a very valuable resource for our country, for India. तो मैं उस perspective से देख रहा था उसको कि ये बहुत सुंदर जगह है, इसको ऐसे बढ़िया सही तरीके से रखे तो बहुत सारे कल्चर्स. एंड देन पेयरिंग दैट अप विद जेड़े बॉर्डर नहीं टप्पे करंट जंग दा ऐलान. हाँ, कि तुम वहां गए नहीं हो. मतलब मैं देखता हूँ ना लोगों की, लड़ाई कर लो, वॉर. भाई तू बॉर्डर से बहुत दूर बैठा है. जिन लोगों को खतरा नहीं है उससे, वो तो बोलेंगे ही कि कर लो, बट at the end they will be affected as well. Everyone will be affected by the war. Once there is war, all middle class is the most affected. गरीबों को तो भूल जाओ, उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है वॉर में. Our soldiers will be affected, their families will be affected. So, and we know who will make profits from it. You know? पिसेगा आम आदमी तो पिसने ही वाला है अंदर. So that emotion was there. वो इमोशन था मेरा. बुक में emotion हाँ, था. कि मत क्यों वॉर करना है. Let's find a solution type of thing. Yeah. The third line I have is यार ता चला गया, याद आई रह गई पीछे. Yeah, that I wrote when I lost my father. Yeah. So it's so weird when the first time I heard it, because yaar is such a ambiguous word. मुझे लगा it's about a romantic
relationship because उस समय मुझे पता नहीं था that your father has Yeah. passed. और नहीं, उसके मैं बाद उसी- जब मैंने पढ़ना शुरू किया I was like oh now I can't listen to that song the same way. नहीं, it's I want you. It's grief. It can be like with anyone. तभी मैंने यार इसीलिए यार लिखा इसीलिए, है. हाँ. हाँ, कि वो तुम्हारे डॉग के लिए भी हो सकता है, तुम्हारे Yeah. ब्रेकअप के लिए भी हो सकता है. Grief is grief. Yeah. And how Kendrick did it, like united in grief. Yeah. I felt it. And in the end, he says, I choose me, I'm sorry. Oh, I cannot listen to that song without crying, where he's like, ये दो words इतने True. powerful है. I choose me, I'm sorry. Like ये वही मेरा भी ऐसा ही इमोशन था. Basically, I wrote this line because when I left my dad, like I was trying to find music to heal me. I was trying to, I was going back and forth with a lot of music कि कोई तो काम करे इस feeling के साथ. Yeah. Nothing worked for me because as an artist, my feeling was too strong Yeah. and I was very judgy at that point कि मेरे को I need something very solid. And then Kendrick said, everybody grieve different. Yeah. You know? That album is, oh. तो मेरे को जाना ही पड़ा Crazy. स्टूडियो में लिखने के लिए कि भाई मैं अपना खुद लिखूंगा. एंड इट वाज नॉट लाइक मतलब 2 हफ्ते भी नहीं हुए थे Oh. तब मैं स्टूडियो में चला गया था. आई रोट इट. द फीलिंग बिकेम वेरी नॉर्मल बिकॉज आई रिमेंबर लाइक इन अ मंथ आई हैड अ शो विच वाज बॉयलर रूम Ah, which I nice. curated the whole lineup for. Yeah. तो मेरे लिए बहुत heavy था to go on stage. And in between all of this, like everybody was putting out stories about me, Yeah. like dissing me publicly. अभी हम आएंगे उस पे भी. So all of that was very tricky for me. तो इसीलिए मेरे को याद was How that was your relationship with him? With My your dad? father? it was bad for very long time from my end. He tried to like balance it out. कल की वीडियो में जो आपके फादर बनते हैं वो एक्चुअली में वही है He is आपके my फादर. dad. Very great actor by the way. अरे हाँ, nice. क्या एक्टिंग करी है. Yeah. अभी भी वो देखता हूँ. पत्थर like, मारता है वो. One take, bro. है? One take. Nice. And I think towards the end, when I went independent, when I finally left all those people in my life, I became myself a little bit. And I came back to my family values. And I had heart to heart with him. Yeah. Yeah, so I'm glad that happened. कि Otherwise वो वो हो मेरे पे bro अभी तक मैं दुनिया जला चुका होता. हाँ. अगर मेरी वो डैड के साथ कॉन्वर्सेशन ना होती, all these who've been dissing me and saying shit about me would be crying by now. So be thankful that I had that conversation with my dad. You know, or not just people dissing me or anything, not just them, the whole industry. अगर मैं वो टर्मोइल में होता अभी तो मैं शायद बहुत लोगों को, और मैं सिर्फ लोगों का नुकसान नहीं करता, मैं अपना भी ना करता. ऑब्वियसली वो तो. मैं अपने आप को इतना जला देता कि सब जल गया दुनिया आसपास. जल जाती. हाँ. Would you say that having this conversation sort of started this process of healing जो अभी मुझे आपकी personality में दिख रही है कि earlier, like I will be very honest with you, earlier you had an image of being very angry Yeah. and like even around like मैं बताता हूँ like दिल्ली के हिप हॉप सीन में 2 चीज़ें प्रभदीप के नाम से फेमस है. एक तो है कि दिल्ली का ऐसा कोई क्लब नहीं है जहाँ पे प्रभदीप ने गिग नहीं किया अपने टाइम पे. हर क्लब में उसने गिग किया हुआ है एंड ही सो वो वर्क एथिक वाली बात. एंड दूसरी थिंग इज ही इज दिस एंग्री पर्सन. बट नाउ आई फील दैट यू हैव काम्ड डाउन अ बिट. Yeah. सो वाज दैट वन ऑफ द मोमेंट्स जब वो निकल आया सारा बाहर? हाँ, 100%. I think grief was that because I grew up as well as a human being. Like I'm with new set of people around me who are empathetic.
towards me. Yeah. You know, How's your mother doing now? she's going through her own battles Her own battles. as well. Yeah, she like वो मेरा सबसे ज़्यादा वो रहता है कि उनको संभालना is my main. Yeah. Again, like none of these matter to me. तुम बोल लो जो मर्जी. Even after this comes out, say whatever the you want to say. I don't give a. Yeah. I care about That's my more family. important, That's yeah. more important for me right now because it's heavy because I love people who know me since day one. Like I love my family. My first purpose before music is to take care of them. You know? You were a son before you were a rapper. Yeah, of course. Yes, I am. Yeah. And that's who I am. That's what I like doing. True. I have fun doing taking care of my loved ones. You know, and वो कर रहे हैं अभी थोड़ा थोड़ा. My mom is also. Are you trying able to like understand. spend time with her? Yes. What's the situation like? Goa, Delhi? Yeah, I come to Delhi. Delhi आते रहते Yeah, हो? yeah. Nice. How's your dog, bro? Man, crazy story. My dog gave birth to puppies. In an hour, my dad passed away. Oh, wow. So we were like, my dad left and gave us puppies, you know, which was very, I don't know, like that again. It wasn't easy. Yeah, it's To a very navigate. हाँ, कि true. मैं खुश हूँ, sad हूँ, like it's. True. My body was in shock at least for a month. And again, like Yeah. in this, I had to take care of all the rituals, funeral rituals, and tackle whatever being said about me publicly Yeah. and make money to support my family. Have you heard Royce the 5'9" का Tabernacle? No. उसकी भी ऐसी स्टोरी है. The day his grandmother passed, his girlfriend gave birth to their son. Wow. So he's like, अब मैं खुश हूँ या मैं हॉस्पिटल में गया था प्रेगनेंसी की डिलीवरी की खबर सुन के और मेरे को वहाँ पे बता रहे हैं कि मेरी ग्रैंडमदर. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. Yeah. It's crazy. नाइस. एंड व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू इन द फ्यूचर, ब्रो? क्या चल रहा है? Man, for next year, I'm gonna surprise everyone. अच्छा जी. I'm gonna do something which I never, like the project which is not expected from me. You were about to make a project about 84, right? That was my first album. हाँ. What is happening with that? I haven't found, like that's been, मैं 3 बारी बना के उसको डंप कर चुका हूँ. Okay. फुल प्रोजेक्ट. 2 बारी म्यूजिक में भी उतरा है वो. 3री बारी बीट्स में उतरा है और लाइक लिरिक्स में उतरा है. बट आई एम स्टिल नॉट, आई स्टिल थिंक लाइक आई हैव रूम टू ग्रो टू पुट इट इनटू वर्ड्स बिकॉज इट्स माय ग्रैंडफादर, माय लिनिएज आई एम टॉकिंग अबाउट. Yeah. तो मेरे को पहले तो अच्छा इंसान एकदम, प्रदीप एज अ ह्यूमन बीइंग हैज टू बी वेरी सॉर्टेड हाँ. True. टू टॉक अबाउट. अभी मेरी जो बाकी सारी ट्रिप्स हैं वो सॉर्ट करके वो मैं अगेन लाइक फर्स्ट माई करियर स्टार्टेड विद इट एंड इट विल एंड विद इट. व्हेन आई विल ड्रॉप 8418, जस्ट नो आई एम रिटायर्ड. Nice. Thanks a lot, bro, Yeah, man. for talking to me. बहुत मजा आया. फुल पावर. लाइकवाइज मैन. Yes. And I think one thing that I have gauged from this conversation and even some of the music that you've been dropping is that whole path of healing. तो वो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे और बहुत मतलब I really जो एक वो troubled artist वाला stereotype है वो मुझे personally इतना अच्छा नहीं लगता because जिनका तुम म्यूजिक पसंद करते हो तुम चाहते हो कि उनकी लाइफ सॉर्टेड हो और अच्छी रहे. Yeah, this is what I, even again, to whatever I said in this interview, if you are an artist who are opposing me, understand this is not for you. My fight is never against an artist. My fight is always against the system and people who are running it. I will openly say any day to them. And to the artist
whoever it is, even if you hate me, I still see you. Do you think you are hated publicly? Of course. Yeah. Of course. Like even if they feel hate for me, I still come out with an empathy because I know the challenges we go through. Yeah. When we go to sleep as an artist, True. only we know what we go through. And you also, as an artist, know. Yeah. So again, like my fight is never with an artist. You So know? I choose me. I'm not sorry. I am never sorry. I choose me, bro. I choose me and my family first. Nice. Thanks a lot. This Cheers, was man. Prateek, and I'll see you in the next one.